Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to give you a lecture on capital budgeting techniques. This will be our first lecture. In this topic, you will learn the role of capital budgeting techniques in the capital budgeting process. Then you will learn how to calculate, interpret, evaluate the payback period, and how to calculate, interpret, and evaluate the net present value, then how to calculate, interpret, and evaluate the internal rate of return. Then you will be able to learn how to use net present value profiles to compare NPV and IRR techniques. Then you will learn what are the potential ranking issues in case of mutually exclusive projects. And in the end, you will learn what is capital rationing and multiple IRR issues. First of all, I will explain you the capital budgeting definition. What is capital budgeting? The definition says that it is the process of identifying, analyzing, and selecting investment projects whose returns in terms of cash flows are expected to extend beyond 1 year. In this definition, there are 4 points that are needed to be explained. First is the identification of investment projects. Secondly, analysis of investment projects. And then we will use some methods to select the investment projects. And fourth, we are talking about those investment projects whose returns are expected to extend beyond 1 year. I will explain you the last part first, and then I will explain you the other 2 points. Basically, capital budgeting involves the decision of long-term investments or long-term assets, or one can call it long-lived assets. Because when a business makes a capital investment, you can also call it capital expenditure, it incurs a current cash outlay in the expectation of future benefits. Usually, these benefits extend beyond 1 year. For instance, investment in assets such as equipment, land, building, as well as the introduction of a new product, new distribution system, or a new program for research and development. In short, the firm's future success and profitability depends on long-term decisions currently made. And this long-term decisions here, the capital budgeting topic is basically dealing with this long-term decisions, how to make these long-term decisions. And these long-term decisions not only explain the success of a firm, but it will also explain the performance of a financial manager. So the first thing is that we are dealing here the long-term investment projects. Those projects whose returns in terms of flows are expected to extend beyond 1 year. मतलब ये हुआ कि उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 1 साल के लिए नहीं है. हम ऐसे एसेट्स की बात कर रहे हैं जिसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 1 साल के लिए नहीं है, बल्कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए. दूसरी चीज़ ये है कि जो रिटर्न्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो अकाउंटिंग रिटर्न्स नहीं, वो एस्टिमेटिंग द रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो. वो जो प्रोजेक्ट है उससे जो हमें रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर, वो रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो. दूसरी बात यह है कि हाउ टू सेलेक्ट these investment projects. उसके लिए हम we will study 4 methods. One is the payback period, second net present value, third internal rate of return, and fourth profitability index. हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि how these methods help us to select the investment projects जो कि ऐड करते हैं फर्म की वैल्यू को. Because we have to select those projects who can add
value to the firm. उस सिलेक्शन के लिए there must be some kind of a decision criteria. An investment project should be judged in relation to whether or not it provides a return equal to or greater than that required by investors. जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इसके लिए ऑब्वियस है कि वो नीड फंड्स। ये फंड्स कहाँ से आते हैं? These funds are provided by investors. Investors are suppliers of funds. जब वो सप्लाई करते हैं फंड्स आपको देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स कौन से हो सकते हैं? दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू इक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स, वो आपके शेयर्स परचेज करते हैं, आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। आप अपने शेयर्स फ्लोट करते हैं मार्केट के अंदर और वो आपको आपके शेयर्स परचेज करते हैं और वो आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। दूसरा ये है कि आप बॉन्ड्स इशू करते हैं, आप क्रेडिट लेते हैं। तो एक तो वो इन्वेस्टर्स हो गए जो कि आपके शेयर होल्डर्स हैं और दूसरे वो इन्वेस्टर्स हो गए जो कि आपके क्रेडिटर्स हैं। So these investors require a certain rate of return on the investment, and that is called required rate of return. From the business point of view, it is cost of capital. जो कैपिटल आपने उनसे लिया है उसके ऊपर आप एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, and from the investor's point of view, it is return because they are investing their money, they are providing you money. तो उनके लिए वो रिटर्न है। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहली चीज़ तो ये है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो रिटर्न अर्न करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो जो रिक्वायर कर रहे हैं उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जितना वो रिक्वायर कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को इतना रिटर्न अर्न करना चाहिए। तो हम ये मेथड्स यूज़ करेंगे और डिटर्मिन करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को जो कि रिक्वायर्ड रिटर्न के इक्वल और ग्रेटर रिटर्न अर्न कर। अगर वो इक्वल या ग्रेटर रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो ऐड करते हैं वैल्यू टू द फर्म, वो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, मार्केट में प्राइस, शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। एक एजम्पशन है इसमें, जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे इसमें एजम्पशन हमने ये ले रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इट इज़ गिवन फर्स्ट थिंग, and it is same for all investment projects. Basically, this assumption implies that the selection of any investment project does not alter the operating or business risk complexion of the firm as perceived by financing suppliers. यानी ये जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इससे ऑपरेटिंग या बिजनेस का रिस्क जो है उसका जो कम्प्लेक्शन है यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। रिस्क जो है वो जो उस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले था वो ही रिस्क सेम रहेगा आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और सप्लायर्स की नज़र में भी उसका रिस्क जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो इस चैप्टर में हमारी असम्पशन ये है कि रिस्क जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए सेम रहेगा, कोई जितने भी प्रोजेक्ट्स में ऐड कर लें रिस्क में चेंज नहीं है। जबकि हमें ये पता है कि प्रोजेक्ट्स जब हम ऐड करते हैं आप आप जो फंड्स जो है वो एक्वायर करते हैं तो और हर प्रोजेक्ट्स का रिस्क का लेवल डिफरेंट होता है, तो उससे ये होता है कि इन्वेस्टर्स फिर ज़्यादा रिटर्न रिक्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैपिटल बजटिंग क्या है अभी हमने इसको कांस्टेंट रखा है। हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस का रिस्क जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर बिजनेस का रिस्क चेंज नहीं होगा तो फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी चेंज नहीं होगा।
और वो तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए सेम रहे। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको इस assumption को रिलैक्स करेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क अगर चेंज होगा तो फिर वो कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेगा। अब हम फर्स्ट टू पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस। प्रोसेस का मतलब होता है कंटिन्यूइंग प्रोसेस, क्योंकि ये नहीं होता कि आपने एक ही दफ़ा ये ज़िंदगी में कर ली है इन्वेस्टमेंट, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए जाहिर सी बात है कि कोई आइडिया जो है वो जनरेट होता है। आप इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट का आइडिया होगा, फिर उसके ऊपर एक प्रपोजल बनती है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल है, इट मे कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, और फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस वी कैन क्लासिफाई the projects into one of five categories. Number one is new product or expansion. आप नई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, आर यू एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। आप एक फैक्ट्री से दूसरी लगा रहे हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट लगा रहे हैं। सेकंड है रिप्लेसमेंट। आप कोई इक्विपमेंट है, ये मशीनरी है, वो आउटडेटेड हो चुकी है, नाउ यू वांट टू रिप्लेस दैट इक्विपमेंट विद न्यू इक्विपमेंट और विद न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप रिप्लेस करते हैं। तो ये एक मोटिव है। तो कोई भी मोटिव हो सकता है, ये जो पांच हमने उसको क्लासिफाई किया है, इसमें से कोई एक मोटिव हो सकता है या एक से ज़्यादा मोटिव हो सकते हैं। तो रिप्लेस कर सकते हैं आप अपने एसेट्स को दूसरे एसेट्स के साथ। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। देखा होगा आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, और जब वो रिसर्च करने के बाद कोई प्रोडक्ट अपनी एक लॉन्च करते हैं, तो वो उसको जाके पेटेंट करवा लेते हैं, ताकि उनका जो फार्मूला है मेडिसिन का, तो कोई दूसरा जो है उसको चुरा ना सके। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और उसका बेनिफिट एक साल के लिए नहीं होता, एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है। तो एक और पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक्सप्लोरेशन है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। आप ऑयल जो है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, गैस एक्सप्लोर करते हैं, इसी तरह और डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। और एक और अदर पर्पजेज है जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, वो एडवर्टाइजमेंट है, या सेफ्टी या पोल्यूशन रिलेटेड जो भी आप मेजर्स लेते हैं, जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा हो। बाद दफ़ा आप बड़ी एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, यानी उसका बेनिफिट सिर्फ एक साल के लिए लिमिटेड नहीं होता, उसका बेनिफिट जो है वो एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो आप उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बिजनेस एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, उनका बेनिफिट जो है वो एक साल के अरसे के लिए होता है। वो फ्रीक्वेंटली एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स जब आप बिजनेस को लॉन्च कर रहे होते हैं, तो आप बड़ी एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट जो होती है उसका उसका जो बेनिफिट है वो एक साल के लिए नहीं होता, बल्कि एक साल से ज़्यादा के लिए होता है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट जिसके बेनिफिट एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसका बेनिफिट जो है वो एक साल से ज़्यादा है। लेकिन ये जो प्रपोजल्स हैं ये कई जगह से ओरिजिनेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, if it's a new product, the proposal usually originates in the marketing department. A proposal to replace an equipment with a new sophisticated model usually arises from the production area of the firm. However, whatever be the source of all investment proposals, it must be consistent with the corporate strategy. जो भी प्रपोजल जहाँ से भी आ रही है, लेकिन वो जो कंपनी की जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता कि KFC जो वहाँ पे फास्ट फूड चेन है, तो वो सिगरेट बेचना शुरू कर दें। ये उनकी जो कॉर्पोरेट जो गोल है या स्ट्रेटजी है उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं होगा। सेकेंडली, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, जो भी रिसर्च प्रपोजल्स आती है,
तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी के ऊपर उसको स्क्रीन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रपोजल ओरिजिनली originated in the production area, the hierarchy of authority must run to firm section chief to plant manager, यानी एक फर्म चीफ सेक्शन चीफ है वहाँ से एक ओरिजिनेट हुआ, उसने आगे प्लांट मैनेजर को दिया, प्लांट मैनेजर ने उसको आगे फॉरवर्ड किया टू द वीपी ऑफ ऑपरेटिंग, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो ऑपरेशंस का, उसने आगे जो है वो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर कमेटी एक होती है जो कि काम करती है अंडर द फाइनेंशियल मैनेजर, उसको आगे फॉरवर्ड किया। तो वो जो प्रोजेक्ट था उसकी स्क्रीनिंग हो रही है एट डिफरेंट लेवल्स। उन्होंने उसको आगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने उसको आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड कर दिया, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर डिसाइड करेंगे एट द एंड कि हमें ये इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए या हमें इसको नहीं जाना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रपोजल है उसकी कॉस्ट क्या है। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो ये जो है वो हायर लेवल्स के ऊपर अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर उसकी कॉस्ट कम है, और डिपेंड दूसरा ये कंपनी टू कंपनी भी करता है, ये वेरी करता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनमें हायरार्की बहुत ज़्यादा होती है, और बाद जो छोटी कंपनीज होती हैं तो वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा हायरार्कीज नहीं होती। तो ये इसका जो स्क्रीनिंग है, अगर तो ये उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक आप उसको लेके जाते हैं। अदरवाइज वो कमेटी के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी है वहीं पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो कैपिटल बजटिंग है बेसिकली ये डील करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और किसी भी कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कंपनी की जो सक्सेस है, जैसे हमने पहले कहा कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपने जो अर्न करना है वो आपने इन्वेस्टमेंट से करना है, और उन वहाँ से जो आप अर्न करेंगे उसी से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, आप अपने जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसको आपने मीट करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है, और इसके लिए हमें बड़े केयरफुल होकर डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि ये या इसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में आता है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, उनको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट ये है कि सम प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल एक कॉन्सर्ट्स में अगर हम लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास लैब का है, तो दीज टू प्रोजेक्ट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों की हमें ज़रूरत है। लाइब्रेरी भी चाहिए, लैब कंप्यूटर लैब भी चाहिए। तो अगर हम चाहें तो हम दोनों, अगर हमारे पास फंडिंग है या फंडिंग ले सकते हैं, तो हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी एक की एक्सेप्टेंस किसी दूसरे की एक्सेप्टेंस को प्रिवेंट नहीं करेगी। जैसे डेफिनेशन में लिखा है, प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस डज नॉट प्रिवेंट द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। तो एक प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस को, या रिजेक्शन जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट के रिजेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। देयर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जैसे बिल्डिंग लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो आपको लैंड चाहिए, अगर लैंड रिजेक्ट हो गया तो बिल्डिंग नहीं बन सकती। इट मीन्स कि दे आर कंटिंजेंट प्रोजेक्ट्स, यानी डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर अदर प्रोजेक्ट्स। इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर उसमें से हम किसी एक को एक्सेप्ट कर लें तो बाकी जितने दूसरे प्रोजेक्ट्स थे
वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। A project whose acceptance precludes the acceptance of one or more alternative projects, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लैपटॉप्स परचेज करने हैं, 100 लैपटॉप्स परचेज करने हैं, तो हम कोटेशंस मंगवाते हैं। तो डिफरेंट कंपनी से हमें कोटेशन आती है, एसर की तरफ से आती है, डेल की तरफ से आती है, एचपी की तरफ से आती है। अगर हमने एचपी एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली हमें तो लैपटॉप चाहिए। तो अगर हमने एचपी एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। इससे अगर हमने फॉर एग्जांपल सीएनजी प्लांट लगाना है तो हम कोटेशंस मंगवाते हैं चाइना से, फ्रांस से, इटली से। लेकिन अगर हमने चाइना की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे जो प्रपोजल्स थी वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम तीनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि किसी एक को एक्सेप्ट करेंगे। जब एक को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये 4 मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें सबसे पहला मेथड है पे बैक पीरियड। फिर हम पे बैक पीरियड जो है ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड नहीं है। तो बाकी जो तीनों मेथड्स हैं ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब ये हुआ कि हम जो पे बैक पीरियड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। लेकिन जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों मेथड्स जो हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं इन मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। whereas payback method जो है it does not consider the time value of money। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू में आपने पढ़ा हुआ है, यू नो के हाउ इम्पोर्टेंट दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड अपने अगर इसको पढ़ें तो ये खुद बता रहे हैं कि what is the pay back period, what is the time in which we can receive our investment। पे बैक इन्वेस्टमेंट कब वापस मिलेगी, पे बैक होगी। द पे बैक पीरियड मेथड सिंपली measures how long in years or months it takes to recover the initial investment। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको वापस मिलने में कितना टाइम लगेगा या कितना अरसा दरकार होगा। ये बहुत आसान और बहुत सिंपल मेथड है। इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करता है वो दो रिटर्न्स में उसका जो है वो फोकस होता है। फर्स्ट ये है कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और दूसरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट उसने की है उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न जो है वो रिसीव होगा। और दूसरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट उसने की है वो उसको कब मिलेगी। तो इन्वेस्टर इसमें बड़ा इंटरेस्टेड होता है कि जो पैसे उसने लगाए हैं वो उसको कितने जल्दी वापस मिल जाए। जो पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बेसिकली ब्लॉक हो जाता है, उसको वो यूज़ नहीं कर सकता है। अल्टरनेट जो इन्वेस्टमेंट्स उसके पास अवेलेबल होती हैं उसके अंदर वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके वो पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है वो उसको रिकवर कर सके। तो पे बैक पीरियड हमें ये बताता है कि हाउ मेनी years and months ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विल बी पे बैक और रिकवर। इसका जो डिसीजन क्राइटेरिया है इट इज़ डिसाइडेड और डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट। ये सब्जेक्टिव होता है क्योंकि कि कब कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट जो हमें फॉर एग्जांपल आपने सीएनजी प्लांट लगाया है तो कितने अरसे में हमने जितनी इन्वेस्टमेंट्स में की थी हमें वापस मिल जाएगी। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। और आपको पता हो तो जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो हम उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं
उस फिजिबिलिटी में हम प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और ये जो हम ऑब्वियस है जो मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि ये तीन, फॉर एग्जांपल ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि सीएनजी प्लांट हम लगाया तो 3 साल में हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर कर लेंगे। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया? तो ये जो डिसीजन है बेसिकली एक्सपीरियंस की बेस पर हमने मार्केट में देखा, या मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने किसी कंपनी के साथ काम किया था, या मैंने जो है इसका रिसर्च की, और मुझे ये पता चला कि अगर आप सीएनजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट है ये 3 साल में अराउंड अबाउट 3 years 3.5 years वी रिसीव our इन्वेस्टमेंट, वी कैन रिकवर our इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटली जो है वो इंट्यूशन बेस्ड है, ये टोटली जजमेंटल है, ये टोटली एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है। If the payback period is less than the maximum acceptable payback period, accept the project. अगर तो जो हमने डिसीजन क्राइटेरिया बनाया, फॉर एग्जांपल 4 years हमने कहा कि ये होगा, तो वो प्रोजेक्ट अगर पे बैक कर देता है इन्वेस्टमेंट लेस देन दी, जो भी हमने फॉर एग्जांपल 4 years जो था वो सेट किया, अगर 4 years से कम में हमें रिसीव हो जाता है तो हम वी विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी रिजेक्ट दैट। तो इफ द पेबैक पीरियड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड, रिजेक्ट द प्रोडक्ट, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एक्सेप्ट किसको करेंगे कि जो रिकवर हो जाए इन्वेस्टमेंट बिफोर दी, जो भी हमने सेट किया था टाइम पीरियड। इफ इट इज 4 years, so it will so the investment must be received before 4 years। हम एक डाटा प्रपोज कर रहे हैं, उसको अगर हम लेके चलें, तो ये एक प्रोजेक्ट है, हम उसको नया प्रोजेक्ट है, उसको हम एवेलुएट करना चाह रहे हैं। She has determined that the after-tax cash flows for the project will be $10,000, $12,000, $15,000, $10,000, and $7,000 respectively for each of the years 1 through 5. The initial cash outlay will be $40,000। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो हमने इनिशियली कैश आउटले यानी हमने जो एक्सपेंस किया है इन टर्म्स ऑफ कैश, वो हमारा हुआ है $40,000, और उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, हमने एस्टिमेशन की है और हमने आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज निकाली है कि ये प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर में हमें $10,000 हम रिसीव करेंगे, और सेकंड ईयर में हम $12,000 रिसीव करेंगे, थर्ड में हम $15,000, फिर फोर्थ में $10,000, और फिफ्थ ईयर में हम $7,000 रिसीव करेंगे। ठीक है, और हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड, we have invested $40,000 initially. So the cash outlay is $40,000 and the cash inflows are 10, 12, 15, 10 and $7,000 from 1 to 5 years. So what is the payback period of this project? हमने टाइमलाइन बना ली 0, 1, 2, 3, 4, 5। के का मतलब है 1000, 40,000, 10,000, 12,000, 15, 10 और 7। एक टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी। It says that payback period is the period of time required for the cumulative expected cash flows from an investment project to equal the initial cash outflow। यानी जिस साल में हमें 40,000 रिकवर हो जाए, क्यूमुलेटिव का मतलब है कि ये कैश ऐड होता रहे, जो इक्वल आ जाए इनिशियल कैश आउटफ्लो के, तो वो हमारा पे बैक पीरियड होगा। इसमें जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट, पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने अरसे में हमें मिल जाती है, उसके बाद जितने पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता, हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ वो डील करता है पे बैक, कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पे बैक हो जाए पूरी की पूरी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने अरसे में हमें पे बैक मिले। तो ये एक ले मैन अप्रोच है बेसिकली किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एनालाइज करने की, ये कंसिडर करने की। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 10,000 है,
ये 12,000 है, ये 15,000 है, और ये 10,000 है, 7,000। 10 + 12 तो ये बन जाता है 22,000। 22,000 + 15,000 तो ये हो जाता है 37,000। यानी थर्ड ईयर में जो टोटल कैश हमने रिसीव किया है फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, इट इज accumulated to $37,000, but still it is less than $40,000. So how much we need? We need $3,000 in fourth year, but in actual we are receiving $10,000. बहुत आसान है। इस 40 में से इस 37 को लेस कर दें तो ये कितना बनता है? 3,000। बट हाउ मच वी आर रिसीविंग? 10,000। लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? हमें 3,000 चाहिए। तो 3,000 इस 10 का कितना पार्ट बनता है? तो वो फार्मूला बन गया। फार्मूला आप खुद भी बना सकते थे। तो आपने सिंपली इसको 10 + 12 किया, +15 किया, तो यहाँ 37 आ गया। +10 करें तो 47 आता है। 47 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? हमने 40 में से इसको लेस किया तो ये आ गया 3,000। तो हमें यहाँ पे 3,000 चाहिए। तो हम 3,000 को डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर। ये 3/10 के है तो 3/10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.33। तो यहाँ पे कितने साल हो गए? यहाँ तक 3 साल। प्लस ये कितना हो गया? 3/10 किया तो ये कितना आ गया? 0.33। तो इन हाउ मेनी ईयर्स? 3.3 ईयर्स। तो व्हाट इज द पे बैक पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट? 3.3 ईयर्स। कितना है? आप क्या कहेंगे? इट इज 3.3 ईयर्स। अगर फर्दर इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि कितने मंथ्स में? 3 years and in how many months? तो आप 0.3 को 12 से मल्टीप्लाई कर, अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 को तो आपके पास जो है वो मंथ्स आ जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें, देखें कि ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 मंथ, यानी 3 years and 3.6 मंथ। अगर आप चाहते हो कि ये 0.6 भी हट जाए तो आप ये जान चाहते हो कितने डेज में, तो एक महीने में 30 डेज ऑन एवरेज लेते हैं। तो 0.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 30 ये कितना आ जाएगा? 80। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 years, व्हाट इज पे बैक पीरियड? तो आ जाएगा 3 years and 3 months and 6 days। तो आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि एग्जैक्ट जो है वो कितना इसका पे बैक पीरियड बनता है। तो नाउ वी विल कंपेयर दिस 3.3 years with the decision criteria. First we look at what is the decision criteria. Payback period acceptance criteria. The management of BW has set a maximum payback period of 3.5 years for projects of this type. Should this project be accepted? उन्होंने उसका जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसाइड किया है इसका जो पे बैक पीरियड है वो 3.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पे बैक पीरियड है इट इज 3.3 years which is less than 3.5 years. So what we have to do, we have to reject this project or we have to accept this project, obviously because 3.3 जो है it is less than 3.5 years, so we have to accept this project. हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये 4 years होता तो फिर हम उसको एक्सेप्ट ना करते क्योंकि उसका पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा था और हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो कम था। तो हम ये समझते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो ये समझ रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को 3.5 years के अंदर इन्वेस्टमेंट जो वापस मिल जानी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो फिर हमें ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसे प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर दें। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि
इसको लेमैन भी जो है वो यूज़ कर सकता है। आपने भी देखा होगा, परेशानी से आप समझ गए होंगे। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, इसको आपने इजीली कैलकुलेट भी कर लिया, तो इट इज़ इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। तो आपने बड़े आसानी से उसको समझ लिया। और इट कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि इस पे हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि कैश हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, इन्वेस्टमेंट हमें वापस जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो ये तभी रिकवर होगी जब आपको शुरू के टाइम पीरियड्स में ज़्यादा कैश जो है वो इनफ्लो रिसीव हो रहा हो, तो इट इसलिए आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। लेकिन इसकी वीकनेसेस क्या हैं? पहली वीकनेस ये है कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही कंसिडर नहीं करता। हमें ये पता है कि टाइम वैल्यू मनी आपने पढ़ा है, तो हमें ये पता है कि जो पैसे हमें आज से 1 साल के बाद मिल रहे हैं, 2 साल के बाद मिल रहे हैं, 3 साल के बाद मिल रहे हैं, 4 साल के बाद मिल रहे हैं, तो जितना जितना आज से दूर होते जाते हैं, आज उनकी वर्थ कम होती जाएगी। जब हम उसको डिस्काउंट करेंगे, तो वो जो पैसा आज से 1 साल के बाद है, जो आज पैसा है और आज से 1 साल के बाद है, उसकी वो वर्थ नहीं होगी जो पैसा आज हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह जो 2 साल के बाद होगा, उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, जो 3 साल के बाद होगा, उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमने टाइम वैल्यू मनी कंसिडर नहीं किया, तो हमने पैसे को तो कंसिडर किया, लेकिन पैसे की वर्थ को कंसिडर नहीं किया। जबकि हमें पता है कि वर्थ जो है, पैसे की मनी की जो वर्थ है, वो जो है वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक इसका फ्लॉ है। दूसरा फ्लॉ ये है कि इट डज नॉट कंसिडर कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। तो जो पे बैक पीरियड के बाद जो कैश फ्लोज हैं, वो ये कंसिडर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोर्थ और फिफ्थ की जो कैश फ्लोज है, ये उसने कंसिडर नहीं किया। तो अगर दो प्रोजेक्ट्स होते बिलफर्ज, एक में कैश फ्लोज जो हैं वो हमें शुरू में ज़्यादा मिलती और बाद में कम, और ऐसा होता है दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें शुरू में कम होती और बाद में ज़्यादा मिलती। तो हमने तो पे बैक पीरियड देखना है कि पहले कितने जल्दी इसने रिकवर कर लिया, तो जो बाद की कैश फ्लोज हैं हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम इसमें सिलेक्शन के अंदर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये जो कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड है उसको ये कंसिडर नहीं करता। हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इसी तरह इसका जो कट ऑफ पीरियड है, बेसिकली जो हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था, वो टोटली सब्जेक्टिव है। उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो बेस करता है मैनेजमेंट की अपनी थिंकिंग के ऊपर, उनके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। किसी मशीन के ऊपर उनका क्या एक्सपीरियंस है, किसी इक्विपमेंट के ऊपर उनका क्या एक्सपीरियंस है, किसी बिजनेस के ऊपर उनका क्या एक्सपीरियंस है, किसी प्लांट के ऊपर क्या एक्सपीरियंस है। तो वो डिपेंड करता है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो वो टोटली जजमेंटल है, सब्जेक्टिव है जो कट ऑफ पीरियड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। देन IRR दूसरा मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं, और फिर तीसरा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।